Namaskar dosto, good evening friends. I am Dr. Sanjay Kalra, your friendly and familiar endocrinologist, and you are watching Dr. KK's Med Talks, Pharma Talks. मगर आज Med Talks ही है, and today is Med Talks with Dr. Sanjay Kalra, and हमारे non-stop show का 907वां 907th episode है. Let's have the headlines for the day. Now, heart failure has been reported to affect 1 in 10 adults over the age of 80. हर 10वें व्यक्ति को जो 80 साल से ऊपर है उन्होंने हार्ट फेलियर हो सकता है. The American Heart Association 2023 statistical update has also reported the largest increase in cardiovascular deaths in the past few years. मतलब जो avoidable deaths हैं, जो premature deaths हैं heart disease की वजह से वो बढ़ती जा रही हैं. This is actually worsened after the post-COVID-19 pandemic. After the COVID-19 pandemic, because after that, even people with mild heart disease are suffering from heart attacks, heart failure, and sometimes, unfortunately, death as well. Not only COVID-19, there is news to suggest that heart diseases are rising amongst the younger people, and this is because of wrong lifestyle choices. तो हार्ट डिजीज जो है एक लाइफस्टाइल डिजीज बनती जा रही है. But there is good news as well, because a recent clinical study has reported that heart failure onset in the general population can be predicted using an artificial intelligence method based on data mining. So we are working hard to reduce the risk of heart failure, to manage it properly, and let's see what our topic is for today. हार्ट फेलियर, व्हाट वी नीड टू डू, ये तो बिल्कुल दिल को छूने वाला टॉपिक है, दिल के नज़दीक वाला. And for this, we need an expert. So shortly, we'll be introducing our guest, Dr. Kamal Kishore. Dr. Kamal has been on the show with us earlier. He is a consultant cardiologist at Rama Hospital in Karnal. डॉक्टर साहब की वेट करते हैं, बट तब तक टॉपिक शुरू करते हैं. Thank you, Joy ji, for logging in. Yeah, it is an important topic, heart failure, like you say, and we are happy to help out. Warm welcome to Dr. Rameshpal Singh Pawar sir as well, Vikas Tumal ji, and Sadhna Paliwal madam. Good evening. तो अब बात करनी शुरू करते हैं हार्ट फेलियर की. अब हार्ट क्या है? हार्ट या दिल, जब बॉलीवुड में देखें अगर, तो इतने सारे गाने हैं हमारे दिल पे बने हुए हैं. सम आर हैप्पी, तू मेरा दिल भर, तू मेरे दिल की धड़कन. So they talk about धड़कन, they talk about the rhythm, the heartbeat. But then there are sad songs as well. मेरे दिल के टुकड़े हो गए. Now that is unfortunate. जिसके भी दिल के टुकड़े हुए. But there is actually a disease, and we welcome Dr. Utsav. Dr. Utsav has worked with Dr. Kamal, who is our guest today. Dr. Utsav, is there a disease जहाँ पे actually दिल के टुकड़े होते हैं, या हार्ट ब्रेक जब होती है तो एक्चुअली हार्ट को फर्क पड़ता है क्या? What is the name of this disease? एक्चुअली जब कोई सोशल स्ट्रेस हो, कोई रोमांटिक गड़बड़ हो जाए, तो एक्चुअली दिल की शक्ल बिगड़ जाती है. सो लेट्स वेट फॉर डॉक्टर उत्सव टू आंसर, एंड वी वेलकम आनंद प्रकाश मिश्रा जी as well. So of course, going back to Bollywood, when you look at Bollywood songs, movies songs, the heart has a very important role to play, and that is good, because even in anatomy, the heart has an important role to play. तो हमारा हार्ट जो है वो हमारी मुट्ठी के साइज जैसा है, और ऐसे राइट साइड, लेफ्ट साइड पे अगर हम ऐसे अपना हाथ रखें, दिस इज वेयर द हार्ट इज, बिल्कुल मुट्ठी जितना है. इट्स रफली 250 ग्राम्स हैवी. और ये जो एक पाव हार्ट की मसल है, दिस टेक्स केयर ऑफ द एंटायर बॉडी, चाहे वो 50 किलो की हो, चाहे 100 किलो की. वेलकम टू डॉक्टर वीके गोयल एज वेल, एंड थैंक यू सर फॉर बीइंग विद अस. So the heart has an important role to play in movies, in romance, in poetry. It has an important role to play in anatomy. इस हार्ट, ये जो हार्ट है ये पंप की तरह काम करता है. तो सारा जो खराब खून है जिसमें ऑक्सीजन कम है, वीनस ब्लड, ये हार्ट में आता है. और जो हार्ट का काम है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसको वापस ये भेजता है पूरी बॉडी में.
अगर ये हमारा पंप काम करना कम कर जाए, अगर ये कमजोर हो जाए, तो ऑब्वियसली बॉडी को ब्लड कम मिलेगा, बॉडी को ऑक्सीजन कम मिलेगी, एंड धीरे धीरे बॉडी वीक होती जाएगी। एंड दिस इज व्हाट हार्ट फेलियर इज, पंप में कमजोरी। अब पंप के भी दो काम होते हैं। पहले तो हमारा हार्ट जो है वो रिलैक्स करता है, शांत हो जाता है ताकि ब्लड उसमें आ सके। उसके बाद वो कंट्रैक्ट करता है ताकि ब्लड बाहर जा सके। सो देयर आर सम टाइप्स ऑफ हार्ट फेलियर जहाँ पे रिलैक्सेशन में दिक्कत है। देयर आर अदर टाइप्स ऑफ हार्ट फेलियर जहाँ पे पंपिंग में, ब्लड कितना बाहर जा रहा है उसमें दिक्कत है। इनकी टर्मिनोलॉजी भी है। डॉक्टर उत्सव इज द एक्सपर्ट, बट लेट्स जस्ट पुट इन वेरी सिंपल वर्ड्स। जब रिलैक्सेशन में दिक्कत आती है, इट्स कॉल्ड डायस्टलिक डिसफंक्शन। जब कंट्रैक्शन में दिक्कत आती है, इट्स कॉल्ड सिस्टोलिक और सिस्टलिक डिसफंक्शन। जो ब्लड बाहर निकलता है हार्ट से, that is being ejected from the heart, and there is a term known as ejection fraction. How much of the blood is ejected from the heart in each heartbeat? Now this is roughly 55 to 65%. It cannot be 100, क्योंकि नहीं तो फिर हार्ट खुद ही खाली हो जाएगा, तो जिंदा कैसे रहेगा? हार्ट को भी तो ब्लड चाहिए ना जिंदा रहने के लिए। So let's take 60% as a benchmark. 60% ejection fraction होना चाहिए। जिनको कंट्रैक्शन में दिक्कत है, वो वाला हार्ट फेलियर है, और सिस्टोलिक या सिस्टलिक डिसफंक्शन है, उनमें इजेक्शन फ्रैक्शन कम होगा। सो यू विल हैव हार्ट फेलियर विद रिस्ट्रिक्टेड इजेक्शन फ्रैक्शन, क्योंकि ब्लड बाहर नहीं निकल रहा। तो दिस इज हफ रेफ, हार्ट फेलियर विद रिस्ट्रिक्टेड इजेक्शन फ्रैक्शन। जिनका कंट्रैक्शन ठीक है मगर रिलैक्सेशन में दिक्कत थी, रिलैक्स नहीं हो पा रहा था, इनका इजेक्शन फ्रैक्शन तो ठीक आता है। सो दैट इज हार्ट फेलियर विद प्रिजर्व्ड इजेक्शन फ्रैक्शन। प्रिजर्व्ड इजेक्शन फ्रैक्शन, मगर हार्ट फेलियर इसलिए है क्योंकि बॉडी, जो हार्ट की बॉडी है, हार्ट का मस्कुलेचर है, दैट इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली। डॉक्टर उत्सव, थैंक यू। Breakup in romance can be called as heart broken, and some words can, Dr. Utsav says, some words can also be used if someone is not able to achieve their goals. That is why perseverance is the key to success, and patience as well. And our patience and perseverance has been rewarded because we welcome Dr. Kamal Kishore. Warm welcome, Dr. Kamal. Thank you, sir. Sorry, That's I fine. just got. Warm welcome. Extremely sorry, I got stuck in some emergency, so I was late for a few minutes. That's fine. Everybody across the country greeting you, Dr. Kamal. Thank you so much. आपको इंट्रोड्यूस दोबारा से करते हैं। Dr. Kamal has been with us before. Dr. Kamal is consultant cardiologist at Rama Hospital in Karnal, and he is one of the leaders in Haryana regarding cardiology education. So, Dr. Kamal, warm welcome. Thank you, sir. डिस्कशन चल रही थी कि बॉलीवुड में, गानों में, फिल्मों में, हमारी पोएट्री में दिल की धड़कन बहुत इम्पोर्टेंट है, दिल का टूटना, इसके बारे में बहुत जिक्र होता है। तो ऐसी कौन सी डिजीज है जब एक्चुअली आप हार्ट ब्रोकन हो जाते हैं? ऐसी वाकई डिजीज है कि हार्ट का मस्कुलेचर टूट जाता है जब किसी के दिल को ठेस पहुंचे तो? Yeah, sir. या So I actually मैं थोड़ा सा लास्ट में जब आप फिलोसफिकल बातें कर रहे थे, ब्रोकन हार्ट, आई जस्ट लर्न लास्ट फ्यू वर्ड्स before joining from the backstage. So broken heart definitely entity, and we together have an article on it also. Broken heart तब होता है जब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम स्ट्रेस की वजह से बॉडी के हार्मोन्स निकलते हैं, एंड हार्ट इज नॉट कैपेबल ऑफ हैंडलिंग दैट स्ट्रेस। हार्ट उतना स्ट्रेस हैंडल नहीं कर पाता है जितना कि वो कॉम्पिटेंट है। जनरली होता है यंग फीमेल्स में या यंग जनरेशन में जो ऑलरेडी एक स्ट्रेसफुल पर्सनैलिटी के साथ जी रहे हैं। इसका हम सेकंड पार्ट भी, सेकंड कंटिन्यूशन एक इनडायरेक्ट सोच सकते हैं। फॉर एग्जांपल प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी में भी देर आर सम केसेस, नॉट, इट्स नॉट, बहुत कॉमन नहीं है, बट यस इट इज नोन एंड इट इज ए फ्रीक्वेंट फिनोमेना, नॉट अनकॉमन फिनोमेना, जब प्रेगनेंसीज के हार्मोन की वजह से हार्ट के ऊपर
काफ़ी ज़्यादा दबाव पड़ता है और हार्ट टेम्परेरीली शट डाउन हो जाता है, मतलब उसकी जो वर्क एफिशिएंसी है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। तो उसको हम एक बोल सकते हैं कि यस, इट इज़ अ काइंड ऑफ अ ब्रोकन हार्ट सिचुएशन और दैट नीड टू बी taken care immediately because otherwise it is a grave emergency because our जितना भी हमारा बॉडी का सिस्टम है वो सब डिपेंड करता है हार्ट की सर्कुलेशन और पंपिंग के ऊपर, सो देयर आर सम एंटिटीज। कई बार ऐसा भी होता है कि दिक्कत तो हार्ट में है, इस्कीमिया हुआ, लेट अस से रात को सोते-सोते ब्लड प्रेशर कम हो गया किसी का, जो भी रीज़न हो, और उसका इम्पैक्ट हार्ट को तो हम अगले दिन ठीक कर देते हैं, वी वर एबल टू मैनेज द हार्ट एंड ब्रिंग इट बैक टू नॉर्मल। मगर जो वो 12 घंटे या 16 घंटे ब्लड प्रेशर कम रहा, तो ब्लड सप्लाई कम होती है, तो इसका असर बाकी अंगों पे भी असर पड़ सकता है क्या? लिवर पे, किडनी पे, पिट्यूटरी ग्लैंड पे, अगर इस्कीमिया हो जाए बहुत सीवियर? यस, देखिए हार्ट फेलियर एक इटसेल्फ अपने आप को डिनोट करता है। इट मींस फेलियर ऑफ, इट्स नॉट फेलियर ऑफ कंप्लीट शटडाउन ऑफ हार्ट रेदर देन इट इज अ इनसफिशिएंट, या हार्ट का फंक्शन जितनी कैपेसिटी उसे करना चाहिए उससे काफ़ी हद तक कम उसका लेवल हो जाता है एंड बॉडी उसको हैंडल नहीं कर पा रही है। सो जब भी हार्ट की सप्लाई, ब्लड सप्लाई, जैसे सर ने कहा हार्ट अटैक के केसेस में कट डाउन होगी, सो टेम्परेरली हार्ट की जो पंपिंग है वो कम हो जाएगी। अब हार्ट की पंपिंग कम होगी तो डेफिनेटली जो सर्कुलेशंस है बॉडी के अंदर, हर ऑर्गन के अंदर, वो कॉम्प्रोमाइज स्टेट में आ जाएगा। जैसे कि किडनी में अगर सपोज करो, किडनी हम ये मानते हैं कि डिस्टल मोस्ट ऑर्गन है जहाँ ब्लड सबसे अर्लीस्ट जहाँ डैमेज होना शुरू हो जाता है, हुँ। क्योंकि ऑलरेडी एक वाटरशेड एरिया में किडनी रहती है। तो अगर हार्ट प्रॉपर काम नहीं करेगा तो सबसे पहला इम्पैक्ट जो हमें क्लिनिकली नोटिस में आएगा वो है किडनी काम करना बंद करेगी। हम बहुत इनडायरेक्टली बहुत पता आराम से पता लगा सकते हैं, पेशेंट का यूरिन एकदम से कम हो जाएगा। सिमिलरली लिवर है, लिवर में सूजन आनी शुरू हो जाएगी क्योंकि सर्कुलेशंस इंप्रूव नहीं है तो उसकी जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए पाथवे ब्लॉक हो गया। ऐसे ही जो हमारी जो ग्लैंड्स हैं, फॉर एग्जांपल एड्रिनल ग्लैंड्स हैं, कई केसेस में ये भी रिपोर्टेड है कि ग्लैंड्स के अंदर ब्लड सप्लाई कम हो गई और उसकी वजह से फिर जो वो हार्मोन्स जिसका उसका काम है कि हार्मोन्स निकाल के ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना, वो हार्मोन कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं। सो ये डिपेंड करता है कि जो इंसल्ट हार्ट को हुई है और उसको ट्रीटमेंट जो मिला है उसके बीच में गैप कितना है। सो हार्ट डिजीज में हम ये कहते हैं कि टाइम इज मनी इन लेमैन टर्म, because every seconds that is जो पास हो रहा है विद ongoing swelling in the heart, वो कुछ ना कुछ डैमेज क्रिएट कर रहा है। तो हमारे पास एक ही रास्ता है कि जितनी जल्दी हो उसके जो भी उसका रीजन है अंडरलाइंग उसको कम कर दिया जाए। जो भी उसके अंदर स्वेलिंग है उसको कम करने का उपाय तुरंत हमें कर देना चाहिए। सो द मैसेज वी आर गेटिंग इज़ कि कई बार लक्षण डायरेक्टली हार्ट के होंगे, तो ऑब्वियसली आप सोचेंगे कि हार्ट फेलियर है या नहीं, अगर है उसे ठीक कर देंगे। मगर कई बार लक्षण और कहीं से के भी हो सकते हैं, लिवर के, किडनी के, पिट्यूटरी ग्लैंड के, और वो भी हार्ट फेलियर दर्शाते हैं। तो वन हैज़ टू बी विजिलेंट, चौकन्ना रहना पड़ेगा पेशेंट को भी और डॉक्टर को भी, स्पेशली नॉन कार्डियोलॉजिस्ट। तो मरीज़ जाएगा ये कह के कि जी मेरी यूरिन आउटपुट कम हो गई है, या मुझे पीरियड्स नहीं आ रहे जब से मेरी डिलीवरी हुई, 6 महीने हो गए हैं पीरियड्स आए को। तो हमें ये लगता है कि हार्मोन्स की दिक्कत है या किडनी की दिक्कत है, जबकि एक्चुअली वो हार्ट की दिक्कत हो सकती है। सर, ग्रीटिंग्स फॉर यू फ्रॉम लुधियाना, फ्रॉम डॉक्टर शालिनी कटारिया, वन ऑफ द लीडिंग गायनेकोलॉजिस्ट ऑफ पंजाब। एंड एक सवाल है विकास जी का। विकास इज़ 33 इयर्स यंग एंड दाढ़ी भी माशाल्लाह है, टॉप की है, डीपी से दिख रही है। He recently had his heart assessment. Total cholesterol is 265. HDL is 53. We will repeat them one by one again because LDL is 172. Triglycerides 202. विकास जी का क्वेश्चन ये है, प्लीज एडवाइज इफ आई शुड यूज medications to control these numbers, or should I rely on diet, lifestyle, and just improving my overall way of life? So, Dr. Kamal, how do we answer this question?
विकास इज कंसर्न्ड अबाउट हिज कार्डियोवैस्कुलर रिस्क, तभी उन्होंने टेस्ट करवाई है। तो कार्डियोवैस्कुलर रिस्क सिर्फ कोलेस्ट्रॉल से नापा जाता है या बाकी चीज़ों से भी नापा जाता है? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने दाढ़ी रखी हुई है, किसी और ने नहीं रखी हुई है, डज दैट इम्पैक्ट आवर कार्डियोवैस्कुलर रिस्क? मैं स्मोकिंग करता हूँ, कोई और नहीं करता। मैं रात का खाना 12 बजे खाता हूँ, कोई और 6 बजे खाता है। व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स व्हिच इन्फ्लुएंस आवर कार्डियक रिस्क? यस, सो देखिए ये इट इज़ क्वाइट, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है इंडिया में, जो लेबोरेटरी टेस्ट तक लिमिट नहीं है, दैट अप्लाइज टू ऑल दी क्लिनिकल गाइडलाइंस एंड प्रोटोकॉल्स, कि इंडिया के अंदर कोई भी स्टैंडर्डाइजेशन प्रोटोकॉल नहीं है, बिकॉज हमारा जो फोकस है अभी, देर आर अदर प्रायोरिटीज विच आर far more important than health as per government is concerned. So जस्ट कीपिंग ऑन द टेस्ट, हम ये बड़ा कॉमन सीन है कि पेशेंट्स आ रहे हैं अपना टेस्ट करा के आ रहे हैं कि हम क्या से, सबसे पहला क्वेश्चन है कि वेदर ही इज अ कैंडिडेट फॉर डूइंग रूटीन मेडिकल टेस्ट, सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही है, ऑन whose advice he has gone for laboratory test. Now let's skip these questions because these are not relevant in our discussion. Question है कि whether he is a candidate for any medications. Now considering his reports, now there are, we have to look for two factors. One is LDL, that is 172, जो थोड़ा सा elevated है, बट जनरली गाइडलाइंस के, साइंटिफिक गाइडलाइंस के अनुसार हमें तब तक उसको ट्रीट नहीं करना है जब तक वो 190 क्रॉस नहीं होता, अगर उनको कोई और रिस्क फैक्टर नहीं है। और सेकेंडली है एचडीएल जो कि 50 से भी ज़्यादा है। सो इट इज़ ए गुड कोलेस्ट्रॉल, इस केस में जो बैड कोलेस्ट्रॉल के मुकाबले में काफ़ी अच्छा है। सो अगर पेशेंट्स को कोई और रिस्क फैक्टर नहीं है, फॉर एग्जांपल ओबेसिटी, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, फैमिली हिस्ट्री, family history means any heart disease in any of the family member at age less than 45 year age. So अगर ऐसे स्मोकर्स, फिजिकल इनएक्टिविटी, ऐसे रिस्क फैक्टर नहीं है, तो फर्स्ट स्टेप होगा लाइफस्टाइल इंटरवेंशंस। लाइफस्टाइल इंटरवेंशन को हम डिफाइन कर सकते हैं जैसे कि अप्रोक्सीमेटली 40 to 45 minutes of intense walk, brisk walk, not no routine walk, brisk walks daily at least 5 days a week, one, or 10,000 steps per day at least 5 days a week, or reduce smoking or no smoking, increase fiber diet, for example खीरा, ककड़ी, टमाटर, salad, fruits, anything which is seasonal, जो भी vegetables, fruits हैं ये सब, और अल्कोहल, सोशल ड्रिंकिंग। सो ये सब लाइफस्टाइल हैं, अगर हम इस लाइफ इंटेंस लाइफस्टाइल को फॉलो करेंगे तो चांसेस आर हाई कि हम इस मेडिसिन को काफ़ी हद तक अब स्किप कर पाएंगे। So quite clear cut answer, Vishal. Vikas ने ये भी कहा he got the test done proactively because he had gone through a bad episode of COVID and he got them done in Singapore. So multiple issues, Vikas. एक तो reports are not so bad provided that you have no other risk factor. Family history of heart disease नहीं है, कोई symptom of heart disease नहीं है, आप smoke नहीं करते, आपको diabetes नहीं है, then things are fine, and then we follow a strict regimented or optimal lifestyle and diet, and then we check again after 3 months. कई बार छोटी छोटी चीजें आती हैं, जैसे डॉक्टर कमल, जब हम डायबिटीज के लिए स्क्रीन करते हैं तो हम जीटीटी करते हैं, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। उसमें हमें देना होता है 75 ग्राम एनहाइड्रस ग्लूकोज विच इज इक्वल टू 82.5 हाइड्रेटेड ग्लूकोज। तो जो ग्लूकॉन डी वाला ग्लूकोज है वो 82.5 ग्राम होना चाहिए। उसके साथ एक और कैविएट है दैट फॉर द प्रीवियस 3 days द पर्सन शुड हैव बीन ऑन अ नॉन रेस्ट्रिक्टेड कार्बोहाइड्रेट डाइट टेकिंग एट लीस्ट 150 grams ऑफ कार्बोहाइड्रेट पर डे। 3 दिन के लिए कम से कम 150 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। उसके बाद आप चौथे दिन जाके जीटीटी करेंगे। Now, I have never seen this being followed in my practice. I have completed 25 years plus in endocrinology. Never, ever, ever have I seen this being followed. Are there any caveats like this for cholesterol? Suppose tonight I went for a beer party. Can I go and get my cholesterol done tomorrow? How many hours do I have to be fasting before getting a test done? ऐसे कोई caveats हैं क्या lipid profile assessment में? यस, सो देखिए लिपिड प्रोफाइल
इसको हमें अलग-अलग कंपोनेंट के हिसाब से समझना पड़ेगा। फर्स्ट जो उसका ट्राइग्लिसराइड का कंपोनेंट है दैट इज डेफिनिटली डाइट डिपेंडेंट। सो इफ वी इवन वी कंज्यूम ए कप ऑफ टी, उससे भी उसका जो लेवल है काफ़ी अल्टर्ड हो जाएगा। सो फॉर दैट वी प्रेफर फास्टिंग। फास्टिंग इसलिए ज़रूरी है बिकॉज़ द टाइप ऑफ मील द पेशेंट इज़ कंज्यूम that may vary from occasion to occasion. Suppose randomly patient may take one paratha and after that he is taking triglyceride, and second time he is consuming paratha, butter and cup of tea. So the level will be highly influenced by the diet. लेकिन जो बाकी अदर कंपोनेंट्स हैं जो कि हार्ट डिजीज के रिस्क असेसमेंट के लिए यूज होते हैं, उसके लिए कॉन्ट्रोवर्शियल्स देर आर डिविजन्स अमंग द ओपिनियंस ऑफ एक्सपर्ट। देर आर ग्रुप ऑफ पीपल जो चाहते हैं कि it should be fasted because we need to, as I have discussed earlier, there should not be much influence of diet. But there are group of peoples who say we have to go for random lipid profile because most of the time patients are living with that LDL component. Most of the time patients are not fasting, so we have to find out the true burden. So, but in general, if we are looking for, देर आर ग्रुप ऑफ पेशेंट्स हु आर जिनका टीजी बहुत ज़्यादा है, ट्राइग्लिसराइड बहुत ज़्यादा है, उनके लिए हम फास्टिंग प्रेफर करते हैं। बट अदरवाइज अ रूटीन नॉन फास्टिंग लिपिड इज एज गुड एज द फास्टिंग लिपिड्स। So, Vikas, thank you for this question because see how much of discussion and debate is being generated. So, some people say fasting करा लें, others say कि ना कराएं, but जो triglycerides है, that is a marker of the ghee that is being taken, the ghee or butter. तो अगर कोई high fat diet लेके पहुंचेगा टेस्ट कराने, certainly the triglycerides will be high. एक और issue है about LDL. Was the LDL that was done for you, was it a direct LDL or a calculated LDL? जब ट्राइग्लिसराइड्स हाई होते हैं 400 से ज्यादा, तो जो फॉर्मूला होता है कैलकुलेटेड एलडीएल का, दैट डजंट वर्क, इट्स नॉट वैलिड। आपके 202 हैं, which is not so bad. I mean, it's okay. The normal is below 150. So we can assume that the LDL is accurate. At the same time, जब LDL बहुत लो हो, 70 से कम हो, and काफी सारे पेशेंट्स में हमारा टारगेट होता है LDL less than 55, LDL less than 70. इनमें भी calculated LDL is not accurate. So at a lower level of LDL, calculated LDL is not accurate. At a higher level of triglycerides, it's not accurate at all. It's not even to be thought of. इनमें हमें डायरेक्ट एलडीएल करना होता है। सो वी हैव टू चेक कि आपका डायरेक्ट एलडीएल हुआ है या कैलकुलेटेड। यदि डायरेक्ट हुआ है, विल बी अ बिट मोर फसी, आई थिंक डॉक्टर कमल, विल हम ज्यादा चुकन्ने हो जाएंगे। एंड यदि Yes, डायरेक्ट direct LDL has definitely a, we generally in our practice prefer direct LDL, but there are some patients who are coming with the reports from village background or from the cities where the standardized are not. So it gives some indirect evidence, yes, okay, fairly good. So, but direct edge. एंड यदि आपका आप नॉन फास्टिंग है, देन अ डायरेक्ट एलडीएल विल बी बेटर। यदि फास्टिंग है, देन इवन द कैलकुलेटेड विल बी फाइन। आई मीन, सो दीज आर वेज ऑफ लुकिंग एट इट एंड एवरीवन विल हैव देयर ओन ओपिनियन। मैंने खुद जो देखा है नाउ इन सो मेनी इयर्स ऑफ प्रैक्टिस, फास्टिंग वर्सेस नॉन फास्टिंग, this is a binary kind of a division. Were you fasting or were you not fasting? But इसमें बड़े सारे ifs and buts हैं. If my patient has had 3 paranthas with the 3 dollops of butter, then I will not ask for a lipid profile. However, if the patient said, yes, I had breakfast, I had a cup of black tea, and I had 2 boiled eggs, then I'll say, okay, let's go ahead and do it. So it depends upon how much protein and how much fat there was in the breakfast. So these are multiple issues to look at. But coming back to Vikas's question, to give a simple answer, would be right, Dr. Kamal, in saying, यदि इनके और कोई भी रिस्क फैक्टर्स हैं हार्ट डिजीज के, फैमिली की तरफ से, अपनी मेडिकल हिस्ट्री की तरफ से, या अपने लाइफस्टाइल की तरफ से, जैसे स्मोकिंग हुआ फॉर एग्जांपल, देन ही शुड गो ऑन मेडिकेशन, स्टैटिन्स। यदि ऐसा कोई भी हाई रिस्क फैक्टर नहीं है, देन डाइट एंड एक्सरसाइज इज द फर्स्ट लाइन फॉर एटलीस्ट अ फ्यू मंथ्स। वुड वी बी राइट इन सेइंग दिस? Yes, sir. Yes. So, okay, Vishal, Vikas, I hope we've been able to be of help. And do let us know after 3 months what happens to your LDL. You need to bring it down. Vishal Kanji पूछ रहे हैं, this is a question I don't know to Dr. Kamal or to KK Med Talks.
आपका सीपीआर ट्रेनिंग प्रोग्राम चलता था पहले. Have we had a CPR training program in Rama Hospital, Dr. Kamal? Yes, we organize the CPR camp uh, every month. There are no fixed days, but we keep on doing the activities. For example, we have a camp in Keras Company on World Heart Day, 29th of this month. So we Yeah. keep on. Very recently, we had a CPR camp on Tennis Academy. So we keep on engaging the people for routine CPR activities. Okay, that is nice, and I'm happy to hear that. Sir, if you could, in the private chat box, if you could put in the contact number of any of your functionaries in the hospital whom we can contact for information, इसको हम comment box में transfer कर देंगे. So the name and number. Ali Nazakat साहब आपको good evening कर रहे हैं. Also Ganesh Ambore जी. And there's a question from Manju Sharma madam. हमने बात करनी शुरू की थी at the beginning. What is diastolic dysfunction? ये हमने एक्सप्लेन किया था कि जब हार्ट रिलैक्स नहीं कर पाता तब दिक्कत आती है. वी हैड जस्ट बिगन टॉकिंग अबाउट इजेक्शन फ्रैक्शन. इजेक्शन फ्रैक्शन प्रिजर्व रहेगा इसमें. मैडम का स्पेसिफिक क्वेश्चन है, एजिंग के साथ क्या सभी को डायस्टोलिक डिसफंक्शन होता है, और इज इट ओनली इन पीपल हु आर गेनिंग इन एज एंड हु आल्सो हैव हाइपरटेंशन और डायबिटीज? नहीं, ये कोई यूनिवर्सल एंटिटी नहीं है कि सभी एजिंग पीपल को डायस्टिक डिसफंक्शन हो जाएगा. डायस्टिक डिसफंक्शन और डायस्टिक हार्ट फेलियर ये दोनों अलग अलग हैं. जैसे कि विद एजिंग डायस्टिक डिसफंक्शन इज वेरी कॉमन, बट इट इज अ ग्रेड 1 और 2 मैक्सिमम, दैट इज ऑल. बट डायस्टिक हार्ट फेलियर ये अलग एंटिटी है. इट मीन्स कि डायस्टिक डिसफंक्शन इतना हो गया है कि हार्ट फिल ही नहीं कर पा रहा है. मैं बड़ा सिंपल सा एग्जांपल आपको बताता हूँ. लेट्स एग्जामिन. जैसे हम एक बैलून है, अगर हम बैलून में वाटर डालेंगे तो बैलून विल बी एबल टू एक्सपेंड. ये एक नॉर्मल हार्ट है. एक्सपेंड करेगा, देन इट विल कॉन्ट्रैक्ट सो दैट ब्लड कैन बी पंप आउट ऑफ द बैलून. बट इफ यू रिप्लेस बैलून with this leather bottle, then the only fixed amount of water or blood volume can come into that leather bottle. After that it will spill out of the leather bottle. It will not be as extensible as that the balloon, simple balloon. So this stiffness depends upon the many factors. Age is only one factor. For example, age है, hypertension है, diabetes है, CKDs है. इन सब रिस्क फैक्टर होने के बाद भी ये जरूरी नहीं है कि हमें डायस्टोलिक हार्ट फेलियर सभी पेशेंट्स के अंदर हो. देयर आर सम ग्रुप ऑफ पेशेंट्स, say roughly the patient who had a risk factor of diabetes, heart disease, LVH, hypertension और kidney disease. इन सब पॉपुलेशन में लगभग 30% के अराउंड पेशेंट्स होते हैं जो कि डायस्टोलिक हार्ट फेलियर में लैंड अप करते हैं. और अनफॉर्चुनेटली जो अवेयरनेस है अभी फिजिशियंस लेवल के ऊपर, और जो एक्सेप्टेबिलिटी है इसको प्रिस्क्रिप्शन पैड पे लिखने की, वो बड़ी कम है. सो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या रहता है कि इको में हार्ट फंक्शन नॉर्मल है, तो पीपल कीप दैट ये जो सांस की दिक्कत है या जो पैरों की सूजन है, इसका हमें कोई और रीजन देखना पड़ेगा. फॉर एग्जांपल कोई किडनी डिजीज हो सकती है या सीओपीडी हो सकती है. सीओपीडी मोस्ट कॉमन डायग्नोसिस होता है इन इफ यू आर नॉट एबल टू पिक अप हार्ट फेलियर प्रिजर्व इजेक्शन फ्रैक्शंस. सो हमें एक एक्सपर्ट की ओपिनियन जरूर लेनी चाहिए अगर आपको ये सब रिस्क फैक्टर हैं. एजिंग है, हाइपरटेंशन है, किडनी डिजीज है या डायबिटीज है. स्पेशली हार्ट स्पेशलिस्ट से जो कि पिकअप कर पाए कि ये जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं ये डायस्टोलिक हार्ट फेलियर की वजह से हैं या फिर जस्ट एक अदर देन हार्ट डिजीज के कोई इश्यूज हैं विच इज अदर देन द हार्ट डिजीज. Thanks for that advice. And Manju ji, I hope you got the answer. और कोई क्वेश्चन हो तो जरूर पूछें. Anything that comes out of this discussion. In the meanwhile, दिनेश ठाकुर साहब एक सवाल पूछते हैं, सर ये बंडल ब्लॉक क्या होता है, और ऐसा सही है क्या कि राइट बंडल ब्लॉक हार्मफुल नहीं है मगर लेफ्ट बंडल ब्लॉक बहुत ही चिंता का विषय है? नहीं, बंडल ब्रांच बेसिकली बंडल एक ये समझिए कि हार्ट के अंदर एक तारों का जाल है. जो लेफ्ट साइड की तारें हैं करंट देने के लिए, वो उसको हम लेफ्ट बंडल ब्रांच बोलते हैं. जो राइट साइड की तारें हैं उनको
राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक, अगर उसमें इलेक्ट्रिसिटी बंद होती है, कम होती है, तो उसमें आरबीबी बोला जाता है, और जो अगर लेफ्ट साइड की इलेक्ट्रिक सप्लाई कम होती है तो हम लेफ्ट बंडल ब्रांच बोलते हैं। लेकिन अ, हमारा जो हार्ट है वो इतना ब्यूटीफुली डिजाइन है, अगर इन केस हमें एक जगह से इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही है तो मसल्स के थ्रू, अगर लेफ्ट वाला ब्लॉक है तो राइट के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पहुंच जाएगी, और लेफ्ट वाला बंद है तो राइट, मतलब वाइस वर्सा वाली सिचुएशंस कंपनसेशन में हो जाएगा। जो बंडल ब्रांच ब्लॉक का हार्ट के फंक्शन से क्या रिलेशन है, इसको हमें उल्टी तरफ से सोचना चाहिए कि जिनको हार्ट फेलियर होता है या जिनका हार्ट कॉम्प्रोमाइज स्टेट में होता है, उनको लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक अगर साथ में है तो वो हमारे लिए एक एडिशनल प्रॉब्लम है। आरबीबी नॉर्मली आप इस तरीके से समझिए कि आरबीबी और लेफ्ट बंडल में क्या रहता है, नॉर्मली राइट साइड और हार्ट, लेफ्ट साइड और राइट साइड जो हार्ट है वो दोनों एक साथ पंप करते हैं। लेकिन लेफ्ट बंडल ब्रांच में क्या रहता है कि पहले राइट वाला कॉन्ट्रैक्ट करेगा, पंपिंग होगी, फिर लेफ्ट वाली पंपिंग होगी, तो पंपिंग जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। लेकिन राइट बंडल में क्या होगा, पहले लेफ्ट वाला पंप करेगा जो हमारा मेन चैम्बर है, और फिर राइट वाला करेगा, क्योंकि लेफ्ट वाला मेन चैम्बर है वो पहले हो रहा है, तो इसलिए राइट बंडल ब्रांच में हमारे लिए इतना ज़्यादा ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सो जितने भी डिवाइसेस हैं हार्ट फेलियर के पेशेंट्स के अंदर, जो भी मान लो जिनका हार्ट फंक्शन कम है 35% से, उन पेशेंट्स में अगर लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक है तो हम वी डू फुल एफर्ट्स कि उसको समहाउ उसको करेक्ट कर दिया जाए, उसको डिससिंक्रोनी से रीसिंक्रोनी में लेके आए, जिसको हम एक डिवाइस की तरह, डिवाइस की हेल्प के साथ उसको हम रिज्यूम कर पाते हैं। थैंक यू एंड मोर क्वेश्चंस कमिंग अप सर। विकास तुमल जी को थैंक यू कहेंगे। थैंक्स विकास फॉर हैविंग किक स्टार्टेड द डिस्कशन टुडे, एंड थैंक यू आल्सो फॉर कंट्रीब्यूटिंग टू इम्प्रूविंग एवरीबॉडीज हेल्थ। एंड आई वुड स्पेशली लाइक टू कमेंड विकास। जब जैसे कोविड हुआ तो हमें पता है कि कोविड के बाद हार्ट डिजीज बढ़ती है, सो इट्स गुड दैट यू वेंट आउट प्रोएक्टिवली टू गेट योर टेस्ट डन। डॉक्टर वीके गोयल सर पूछते हैं, लो ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट्स में शुड वी एडवाइज मोर सॉल्ट, एंड व्हाट इज द स्टेटस ऑफ एग्स? अलग अलग भिन्न तरह के मरीज होते हैं, व्हाट शुड वी एडवाइज टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेशेंट्स रिगार्डिंग एग इनटेक? Yeah, egg intake, boiled egg you can consume easily without any discussion. You can have one full egg, or maximum you can have two full egg with yolk itself. लेकिन अगर हम दो से ज़्यादा लेंगे तो प्रेफर करेंगे कि हम वाइट पोर्शन उसका लें, बिकॉज द कोलेस्ट्रॉल कंटेंट दैट इज प्रेजेंट इन द एग योक, एंड जो स्टडीज हैं, साइंटिफिक रिसर्च है, दैट इज ऑफ वेरी गुड क्वालिटी। सो we can go with the egg yolk 1 or 2 maximum, but after that protein part is more beneficial as compared to the egg yolk. And second question is, sir, for low blood Salt, pressure, salt. हाँ, for low blood pressure salt intake, coffee intake, uh, ये सब हम प्रेफर करते हैं अगर पेशेंट को कोई सिम्टम्स हो। अदरवाइज ये जितनी भी स्टडीज हैं वो ये उनका कंक्लूजन ये है कि जो पेशेंट जिनका ब्लड प्रेशर लोअर रेंज में रहता है और उनको सिम्टम्स नहीं है, लोअर रेंज मीन्स 100 टू 110 या 115 तक रहता है, जनरली उनको हार्ट डिजीज होने का रिस्क फ्यूचर में कम है। सो दे आर ऑन द सेफ साइड, सो देर इज नो नीड टू बोदर इफ पेशेंट को कोई दिक्कत नहीं है, कोई सिम्टम्स नहीं है, बट इफ यू फील गिडीनेस देन और ब्लैकआउट्स, तो हमें कुछ देखना पड़ेगा उसका रीज़न क्या है। और हम स्पेशली हमें एंडोक्राइनोलॉजिकल पार्ट से भी, हार्मोन्स के एंगल से भी उसको देखना पड़ेगा, कुछ हार्मोन का बैलेंस नहीं है, या ओल्ड एज के अंदर फॉर एग्जांपल हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसकी कमजोरी है, या पार्किंसनिज्म है, या कोई ड्रग्स है, फॉर एग्जांपल प्रोस्टेट की जो ड्रग्स हैं। सो ये सब कॉमन कॉज हैं प्रैक्टिस में जो जनरली ओल्ड एज पेशेंट्स के अंदर हम इनकाउंटर करते हैं, और पहले हम इनको ओमिट करते हैं। सेकंड नंबर पे हम फिर एडवाइस करते हैं कि गो फॉर हाई सॉल्ट कॉफ़ी, और if not treatable then go for other medicines. And it's a good idea to focus on general diet as well, because कई बार कई लोग होते हैं, किसी को जोश चढ़ता है इंटरमिटेंट फास्टिंग का, किसी को जोश चढ़ता है कीटो डाइट का। ऑल दीज प्ले हैवक विद द वैस्कुलेचर।
जो ब्लड वेसल्स हैं हमारी बॉडी की, वो भी बेचारी इंसान का ही हिस्सा है, तो उनको ज्यादा तंग ना करें। अगर आप उनको झटके देंगे, देखो जब आप गाड़ी ड्राइव करते हैं तो स्मूथली ड्राइव करते हैं, लेट्स से यू हैव अ गियर वाली गाड़ी, तो यू विल मूव फ्रॉम फर्स्ट टू सेकंड टू थर्ड टू फोर्थ एंड मे बी फिफ्थ, एंड देन यू विल मूव बैक स्टेप वाइज। फिफ्थ गियर में जब आप गाड़ी चलाते हैं तो अचानक थोड़ी ना ब्रेक मारते हैं, अगर मजबूरी में मारनी पड़ गई तो पक्का इंजन सीज होने के चांस है। एंड गियरलेस गाड़ी भी है, वो भी धीमी गति से अप डाउन होती रहती है, गियर्स में खुद बदलती है। तो जब आप अपनी डाइट के पैटर्न को, व्हेन यू चेंज योर डाइट पैटर्न, डाइट कॉम्पोजिशन, डाइट क्वांटिटी सडनली, व्हेन यू चेंज इट सडनली एंड व्हेन यू चेंज इट रिपीटेडली, तो वैस्कुलेचर को भी झटके लगते हैं और इसलिए भी ब्लड प्रेशर अप डाउन हो सकता है। तो यदि आप एक सात्विक डाइट फॉलो करेंगे, रेगुलर स्मॉल मील्स, तो ये दिक्कत आएगी नहीं। सर वी हैव अ क्वेरी, जॉय जी कहते हैं कि माय मदर हैज ड्राई कफ फॉर द पास्ट 4 मंथ्स। तो बाद में पूछेंगे कि इसी एक सेंटेंस में क्या घंटी बजती है दिमाग में, ड्राई कफ फॉर द पास्ट 4 मंथ्स। शी ऑल्सो हैज रूमेटॉइड आर्थराइटिस। आफ्टर 4 months she got fever and breathlessness also. SpO2 came out to be 23, 93. CT scan was done which showed honeycomb pattern in right lower limb. तो ये भी सर पूछेंगे honeycomb pattern क्या होता है। And then she got swelling of both feet. She's admitted now, so she'll be fine, Joy, don't worry at all. Furosemide has been given, it means वो सारा water भरा हुआ है lungs में भी और पैरों में भी, उसको निकाल रहे हैं। Meropenem is an antibiotic that your doctors are giving to treat the infection. And tomorrow they'll do an echo because they are suspecting left ventricular failure. So, sir, what does this story tell you about? Is it very common, and why has senior Madam Joy been suffering for past 4 months? What could we have done to help her earlier? यस, देखिए जितनी भी क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज रहती हैं, इन्फ्लेमेटरी मीन्स जो कि क्रोनिक जो बॉडी के अंदर लगातार लंबे टाइम से एक बीमारी चल रही है और बीच बीच में फ्लेयर हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल रूमेटिक आर्थराइटिस और एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस और अल्सरेटिव कोलाइटिस और आईबीडीज। सो इस तरह की जो बीमारियां हैं वो बॉडी के अंदर जो हार्मोनल इम्बैलेंस क्रिएट करती हैं, जो टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट करती हैं, अल्टीमेटली सूनर और लेटर वो हार्ट के फंक्शंस को भी कॉम्प्रोमाइज करती हैं। अब इस तरह के पेशेंट्स के अंदर हमारे पास दो स्पेक्ट्रम है। फर्स्ट, प्रोबेबली जो फर्स्ट जो डायग्नोसिस जो हमें लग रहा है वो है कि इसके साथ लंग्स भी इन्वॉल्व हुआ है, जिसकी वजह से सीटी स्कैन के अंदर आपका हनीकॉम्ब अपीयरेंस और ये सब फाइंडिंग्स आई हैं। नाउ लंग्स मेनली ब्लड रिसीव करता है फ्रॉम राइट पार्ट ऑफ द हार्ट, एंड राइट पार्ट ऑफ द हार्ट ब्लड रिसीव करता है हमारी लेग्स और रेस्ट ऑफ द बॉडीज। सो इस तरह की सर्कुलेशन चलता है। रेस्ट ऑफ द बॉडीज of blood है that comes to right side of the heart, right side heart push the blood to the lungs. So if lungs are compromised, then this blood circulation get halted और उसकी वजह से ये सब swellings, सांस की दिक्कत और ये पैरों में हाथों में swelling, ये सब कॉमन फैक्टर्स हैं। अभी जो ट्रीटमेंट चल रहा है वो आई होप ये प्लेटफॉर्म सही नहीं है हम इस पे बात करें, बिकॉज द पेशेंट इज नॉट विद अस। जो भी ट्रीटिंग डॉक्टर है वो अपने बेस्ट एफर्ट्स कर रहे हैं, एंड आई विश कि शी शुड बी ऑन विद स्पीडी रिकवरी। It is a Joy. It is a multisystemic disease. Let's say rheumatoid arthritis है, then the lungs are involved, the vasculature, the heart maybe, but everything will get sorted out. So don't worry at all. Sir, more questions and comments. And Vikas got his test done after 8 hours of fasting, which is right. Namika Anuji आपको ग्रेट कर रही हैं। डॉक्टर शहजाना हैदर अली मैडम पूछती हैं, एनी मेजर्स, एनी मेडिसिन टू रेज HDL, the happy cholesterol, the healthy cholesterol, because it is very difficult to raise it as opposed to LDL, which is quite easy to reduce. Yes, there are medicines, but the side effect profile is not justifiable if you use it in a higher dose. For example, niacin is there, even statins are there, and then recent medicines are also there. But
generally the medicines are being targeted with LDL part, because जितना भी हार्ट का रिस्क है वो LDL के साथ मैच करता है. HDL की elevating HDL does not reduce the risk of heart. सो देयर आर पैची स्टडीज. तो हमारे पास इस चीज़ की एविडेंस नहीं है कि हम एचडीएल को एलिवेट करें तो शायद हमारा हार्ट का जो रिस्क है वो कम हो जाए. नो, द स्टोरी इज अदर वे अराउंड. हमें एलडीएल कम करना पड़ेगा तो ही हमारा जो है रिस्क कम होगा. तो जितनी भी मेडिसिन हैं वो एलडीएल को कम करने के लिए हमारा टारगेट रहेगा. जो ये सब मेडिसिन एक या दो अवेलेबल हैं, बट दे आर नॉट वेरी गुड ऑप्शंस फॉर पेशेंट. साइड इफेक्ट प्रोफाइल उनका अच्छा नहीं है. So the primary target is LDL, Dr. Shizana. However, you will have patients who are concerned. अब देखो, जब मेडिसिन में पहले हम बात किया करते थे, हमें पढ़ाया गया you ask for symptoms and you look for signs. Now, as we are evolving, as medical care is becoming better and better, signs are reducing in prevalence. Even symptoms are reducing. Patients come into the OPD asymptomatic. So now, instead of signs and symptoms, we first of all speak of complaints and concerns. So sometimes the patient has a complaint कि मेरी छाती में दर्द है. So you have to fix that up. You have to find the reason and fix it up. It can be a rib fracture. It can be a heart attack. You have to find out the reason. There are other times when the patient has a concern. अब यदि मरीज का कंसर्न है कि मेरा HDL लो है, मैं क्या करूं? उसका ट्रीटमेंट एक तो रहेगा हेल्दी डाइट. Secondly, reassurance. This low HDL is not directly linked with increased mortality. But यदि फिर मरीज कहे कि आप मेरा नंबर इंप्रूव कर दें, I want to bring it above 40 or above 50 in women, then maybe a combination of icosapentaenoic and docosapentaenoic acid you can try EHA, EPA. But keep on reminding the patient that the primary target is LDL and a good lifestyle is what is needed. सर ऐसे ही अब देखो, अभी हमने कहा डॉक्टर कमल के प्राइमरी टारगेट हमारा LDL है, और अब फिर मैंने जोड़ा कि यदि पेशेंट की कंप्लेंट और कंसर्न HDL से लिंक्ड है तो उसे ठीक करें. तो दीप्ति जी एक क्लिनिकल पिक्चर रेज कर रही हैं. 39-year young lady, total cholesterol is 152, which is wonderful. HDL is 39 for a lady. LDL is 55, which is okay, but triglycerides is 280. And we assume that this lipid profile was done in fasting state. तो सर ट्राइग्लिसराइड्स के लिए क्या करना चाहिए? And we assume that Dipti ji does not have diabetes, does not have thyroid, does not have kidney disease. ये तीनों सबसे कॉमन चीजें हैं हमारी ओपीडी में. Uncontrolled diabetes, uncontrolled thyroid, uncontrolled kidney disease or untreated kidney disease, which are associated with high triglycerides. So assuming that these are not there, what should madam do? So triglyceride is 252 280. and 280, and for what is the HDL level? 39. Okay. So there is nothing to worry about it, because asymptomatic जो ट्राइग्लिसराइड है, जनरली हम उसका जो टारगेट रहता है वो हमारा रहता है 500 से ज़्यादा. और एक और बात यहाँ जो बहुत सारे पेशेंट्स के लिए एक मैसेज है, जो ट्राइग्लिसराइड्स के लेवल होते हैं जनरली उनको ट्रीटमेंट करने का पर्पस हार्ट डिजीज का नहीं है. उनको ट्रीटमेंट करने का पर्पस हमारी एक और जो ग्लैंड होता है जहाँ से इंसुलिन निकलती है, पैनक्रियास, हम उसके लिए ज़्यादा वरी करते हैं. और 500 तक हम लाइफस्टाइल इंटरवीन प्रेफर करते हैं. फॉर एग्जांपल आपको घी चिकना ये सब प्रेफर नहीं करना है, और थायराइड है तो वो करेक्ट करो, अल्कोहल इंटेक बिल्कुल क्विट करो. और सिग्निफिकेंटली नंबर ऑफ पेशेंट्स, फॉर एग्जांपल थायराइड का ही एग्जांपल, अगर कई पेशेंट्स इंडिया के अंदर थायराइड comes to OPD with hypertriglyceridemia as first manifestation of the hypothyroidism in cardiac OPD, not in the endo OPD. For cardiac OPD, we generally evaluate for routine test for ask for routine test, and we were surprised that it is in gross hypothyroidism conditions. So generally हम risk factor correct करते हैं तो most of the time patients को need नहीं रहती है. So don't worry about the TG level of 282 और रिलैक्स्ड और लाइफस्टाइल इंटरवेंशन रहेगा इस चीज़ के लिए.
So lifestyle would be the best actually, and try to reduce ghee, saturated fats, other oils. छुपा हुआ तेल देखें दीप्ति जी किचन में, जो विजिबल ऑयल है वो तो उसमें तो हम कंजूसी कर लेते हैं, लाइक यू नो पुटिंग बटर ऑन टॉप ऑफ योर चपाती दैट यू विल काउंट, एडिंग oil or ghee to your vegetable or dal, that also you will be able to count. But जो छुपा हुआ घी है, let's say you ate lot of namkeen biscuits, or maybe you ate lot of haldiram wala namkeen, fried namkeen, we forget that there's a lot of ghee associated with that. And these are trans fats, trans saturated fats, which are even more unhealthy for the liver, for the heart. So try to sort of focus on them. Anybody who has high triglycerides and also has episodic abdominal pain, यहाँ पे pancreatitis का बहुत डर रहता है. तो अगर ट्राइग्लिसराइड्स बहुत हाई हैं, अल्कोहल की इंटेक है, गॉल ब्लैडर स्टोन्स हैं, these are all risk factors for pancreatitis. As a lady, आप oral contraceptives ले रहे हैं, that is also a risk factor for pancreatitis. कोई estrogen ले रहे हैं as part of menopause hormonal therapy, that is a risk factor for pancreatitis. इन सब में हमें triglycerides immediately कम करना है. अगर किसी को estrogen लेना ही है for whatever the indication is, then it is much safer to give transdermal estrogen. स्किन के जरिए आप ऑइंटमेंट या पैच दे सकते हैं, उसके साथ रिस्क नहीं होता ज्यादा थ्रोम्बोएम्बोलिज्म का. सर और सवाल आ रहे हैं. विकास जी पूछते हैं कि व्हेन वी टॉक अबाउट फैमिली हिस्ट्री, इज इट जस्ट पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स और डज इट इंक्लूड अंकल्स एंड ऑन्ट्स? एंड इन इंडिया व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रीमेच्योर कार्डियोवैस्कुलर डिजीज? मतलब हार्ट डिजीज किसी को 80 साल पे हो गई या 90 साल पे हो गई, उसको भी हम सिग्निफिकेंट फैमिली हिस्ट्री मानेंगे क्या? नहीं, जैसे मैंने पहले भी अभी जस्ट पहले डिस्कस किया कि फैमिली हिस्ट्री हम तभी मानेंगे जब प्राइमरी फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स and history of documented heart disease at age less than 45 year of age. Right. Maybe So शायद only for female I think it's 50 year. I may be wrong, I just cannot recall, but probably it is 45 and 50 years. 45 for men and 50 for female. and only So first only degree. only first degree. पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स इसमें इसमें विकास भाई वाइफ भी नहीं आती फर्स्ट डिग्री में इस डेफिनेशन में. रमेश पाल सिंह पवार पूछ रहे हैं, सर माय फास्टिंग कोलेस्ट्रॉल इज अबव 200, आई एम 73 इयर्स ओल्ड, आई हैव डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन. तो यदि अब सर इज 73 इयर्स यंग, दो हिस्सों में बांटते हैं. यदि सर पहले ही स्टैटिन ले रहे हैं कोई, तो शुड ही इंक्रीज और कीप द डोज द सेम? यदि अभी तक उन्होंने कोई स्टैटिन नहीं लिया, सर इज 73 इयर्स यंग, डायबिटीज ब्लड प्रेशर वेल अंडर कंट्रोल है, शुड ही स्टार्ट अ स्टैटिन? LDL सर कितना है, प्लीज रिपीट करें. More than 200, I am not very sure. LDL 100 ले लेते हैं डॉक्टर साहब, because I cannot make out from the message. See, अगर डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, डेफिनेटली हमें स्टेटिन we have to go for statins, because जो हमें LDL का लेवल, we are not focusing on the quantitative that this much level is safe. We have to reduce LDL by 50% approximately. So for diabetic hypertension जिनको हार्ट डिजीज नहीं है, उनकी स्टेटिन लो डोज पे रिकमेंडेड है, तो हमें उस पे जाना पड़ेगा स्टेटिन के साथ. Warm greetings for you, Dr. Kamal, from Dr. R.S. Chaudhary. Sir is one of the senior most surgeons of Haryana state from Karnal city. Sir आपको blessings दे रहे हैं, और सर ये भी पूछ रहे हैं, supposing somebody has been put on let us say dexamethasone or any other steroid therapy for a short period of time, does that impact heart health? I think you will be the right person to answer this question, because we are not used to such kind of therapies, and we generally do not encounter such patients very frequently. Maybe I am out of this stream right. इसका सर हम रफली कट ऑफ 20 डेज का लेते हैं या 3 वीक्स का. यदि स्टेरॉइड थेरेपी 3 वीक्स से ज्यादा चलनी है in a dose which is equivalent to 60 milligram prednisolone or more, then we will be very cautious about metabolic, mitogenic, all kinds of side effects.
बट यदि 20 days से कम है टोटल थेरेपी, देन इट्स नॉट टू मच ऑफ एन इशू. सो दैट इज अ रफ कट ऑफ दैट वी टेक, 3 weeks थेरेपी. अली नजाकत सर एक सवाल पूछ रहे हैं, कैन स्टैटिन्स कॉज हाइपोटेंशन, लो ब्लड प्रेशर? No. एंड एक और The side effect profile of statin is very safe, and those there are some documented reports, for example, diabetes and some malignancies, cancers. But the risk of that uh, these complications are far far less when we talk about the benefit what we are getting from these statins. And some the scientific research that there are some controversies, there are some reports that do favor this kind of side effect, there are some reports that do not claim that such side effect do not happens. These are incidental finding when we, because a large population has been enrolled in meta-analysis. So as such there is no issue related to the hypertensions, or rather than other than muscles pain, I don't find statins any other side effect with these statin therapies. Dr. V.K. Goyal thanking you for your presentation, and he loves the very simple way in which you explain things to us. ऐसे ही सर डॉक्टर नज़ाकत जो पूछ रहे थे, स्टैटिन से हाइपोटेंशन नहीं होगा, मगर ये पेशेंट थी हु वाज ऑन टेल्मीसार्टन एंड एम्लोडिपिन एंड वाज डूइंग वेरी वेल, ब्लड प्रेशर स्टेबल था. सडनली ब्लड प्रेशर लो हो गया, वेट भी बढ़ गया, एम्लोडिपिन के साथ स्वेलिंग ऑफ द फीट हो सकती है, साथ में शुगर भी हो गई, जबकि टेल्मीसार्टन एक्चुअली प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट न्यू ऑनसेट डायबिटीज. सीजर डिसऑर्डर भी हो गए, एंजाइटी डिप्रेशन थी, एंड यहाँ पे कैच आ रहा है, शी इज ऑन मेडिकेशन फॉर डिप्रेशन. मेनी ऑफ द Yes. novel antipsychotics many of the novel antipsychotics can cause obesity and diabetes. ऐसा नहीं कि हम उन्हें बंद करें, वी जस्ट हैव टू बी वॉचफुल. बट सर ऐसी कोई हार्ट की इश्यूज, मरीज 130/90 बीपी पे चल रहा है टेल्मीसार्टन एम्लोडिपिन पे, सडनली बीपी 60/30 हो गया रातों रात. व्हाट आर द things that come to mind? Why would the BP have fallen suddenly? And we are asking about a sudden change. Can something in the heart trigger hypotension? Yes, sudden, see, blood pressures, if we look into the broader picture, BP is controlled by two parts. One is the vessels and blood vessel itself, and second is the central organ heart. If we talk about blood vessels, so there are conditions. For example, it is a high humid conditions, और पेशेंट हैज इनटेक ए लॉट ऑफ अल्कोहल. सो इस केस में क्या होगा कि ब्लड वेसल डायलेट हो जाएंगे, ब्लड वेसल्स फैल जाएंगे, तो जितना भी ब्लड का पूल है वो सब उसमें इकट्ठा हो जाएगा. और जो पेशेंट्स ऑलरेडी ऑन एंटी हाइपरटेंसिव पे हैं, दे बिकम मोर प्रोन फॉर हाइपरटेंशंस. And second issue is related to other medicines. For example, patient has very recently started the drugs for prostate or some antidepressant medicines. So these also cause acute hypertension. Now, second issue is with the heart. So it is more serious condition. For example, patient has recent heart attack, patient land up in a heart failure, patient has some infection that has also gone to the heart muscles, for example, myocarditis. So there are n number of conditions, and but definitely if there is acute hypertension, we need to consult an expert to find out the underlying cause and sort out the issues. So you have to check multiple things, and at least an echo would be in order. An ECG, an Yes. echo, these tests must be done. Dr. Goyal sir पूछ रहे हैं, in your experience, Dr. Kamal, which antihypertensives cause the maximum dry cough? ACE inhibitors, Cardase group, Ramipril, and enalapril, indanapril, this kind of perindopril. So these are the drugs which are where the dry cough is very common. It is rather than very common, it is more common than the literature documented it. Yes.
because Yeah. in cardiacopedy we sometime there is a time we used to hate this drug because every time we have to change the whole of the medicine profile. The safety profile is very good, outcome profile is very good, that correlate with the ACE inhibitors, but with dry cough we have to shift all the therapies according to ARB or ARNI. We switch to that therapy. Another question is, can beta blockers also cause dry cough? uh, Not known. So they can precipitate an asthmatic episode. No, in asthmatic, we generally prefer beta 1 selective group of beta blocker. For example, we can use carvedilol. So this is kind of drug which is long lasting and which is a little bit safe as compared to other non-selective beta blockers. सतीश कुमार जी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सर मेरा बीपी 90/60 रहता है हमेशा और मुझे कंपन होती रहती है, क्या करें? दैट्स द क्वेश्चन. So मैं एक आपको शायरी सुनाता हूँ. हालात ऐसे भी आते हैं जिंदगी में, सिर्फ चुप रहकर मुस्कुराना पड़ता है. तो नथिंग टू वरी. इसमें उम्र लंबी रहेगी इसकी. लो है, इसका मतलब आपका हार्ट कम काम कर रहा है तो धीमी गति से लगा रहेगा काम करते हैं, तो Yes. एक्चुअली उम्र लंबी होगी. खाना पीना Yes. बढ़ाएं, डोंट गो ऑन फास्टिंग, इंटरमिटेंट डाइट्स एंड We have कीटो डाइट. already discussed that there are, if we in larger way, if we divide the population, there are two sets of population. First population is that have a blood pressure of generally on the lower curve, 100 to 120. They do very well, and most of the time in future the risk of hypertension or blood pressure related complication are less in such group of patients. And second group is where the baseline BP right from the teenage and 20s or 30s, the blood pressure jumps to the upper curve, that is 130 to 140. So in that populations, most of the time they'll end up in a hypertension if they do not follow intense and intense lifestyle modification. So you are lucky that you're in the lower graph, and hypertension rated will be low in your trajectory of your age group. Yep. तो स्टीज चीयर अप, मस्त रहो. प्रमोद जी का जो क्वेश्चन था, we had taken this right at the beginning, प्रमोद अग्रवाल जी, about whether to do lipids fasting or non-fasting. So Dr. Kamal had discussed that, I think around 7:15 or 7:20 p.m. Dr. VK Goyal sir पूछते हैं, if my cholesterol goes to below 100 total cholesterol, should I stop statin or should I go to a low dose, low intensity dose, like maybe 5 milligram rosuvastatin, 10 milligram atorva? Total cholesterol is So 100. what ये specifically comments medical populations के लिए है. There are some colleagues, professionals also. See, statins need to be titrated with LDL, not for the total cholesterol. One. Second point is the target. If you are a known heart disease, if you have known CAD, use high dose intensity, 40 milligram of Rosva or 80 milligram of Atorva, or whatever maximum you are tolerating, and minimal target should be 50% of the baseline LDL level. Third, even if your LDL goes less than 30 milligram, do not stop the statin therapies, because there are let me share one example. There are some genetic disorders where people do not have LDL. PCSK mutations, there people do not have LDL, even they are safe. They do not have any issues related to their liver, related to the diabetes, related to their hair, or related to their sperms. So they do not have any reproductive issues, so they do also very well, so you are safe. So but you will be more safe if your LD will be less than 50% of the baseline, because it is the only target that can reverse the process of atherosclerosis.
as per scientific evidence. So this is just for the our medical colleagues, because only they can understand this language. Dr. Pawar started statin 20 milligram, which is great with that high LDL. So well done, sir. छा गए आप तो. अब आप और यंग हो जाएंगे, आपका हार्ट और वेसल्स और यंग हो जाएंगे सर. विनायक शर्मा जी की तरफ से गुड इवनिंग आ रहा है. Thank you, sir. प्रमोद अग्रवाल जी पूछते हैं, कैन statins cause Peyronie's disease, that is bending or increased curvature of the penis? No, That would be a very definitely no. confident no. Yeah, Agarwal's a Definitely. very confident no. And Peyronie's disease occurs with age. Actually, nobody knows the reason for that. There are a few Yes. predisposing factors like increased injections in the penile area, but otherwise, nobody knows the reason for it. Gaurav Sahab is 38 years old and SGOT-PT are above 35, but exact value chahiye Gaurav bhai. I take alcohol 2 to 3 times a week. So above 35, Gaurav, the exact value we would want, and also your weight perhaps, weight and diabetes status. Mahesh Chauhan ji पूछते हैं, can statins cause liver toxicity, liver damage, or do they help in fatty liver? No, they do help in fatty liver. There is no doubt, and we need to be cautious of hepatotoxicity related to the statins also. If there is hepatic intolerance, then or hepatitis ongoing, then we must watch the doses of the statins. एक चीज कहूंगा which is not in the books but it is just pragmatic. जो भी हम दवाइयां देते हैं डायबिटीज क्लिनिक में, कार्डियोलॉजी क्लिनिक में, they are given in a chronic fashion for a long period of time, and the aim is improving long term outcomes. तो मान लो आप कोलेस्ट्रॉल की, ब्लड प्रेशर की और डायबिटीज की दवा ले रहे हैं, ये आपकी लॉन्ग टर्म आउटकम्स को इम्प्रूव करती है, हेल्थ को बढ़ाती है. But supposing somebody has got, let us say, jaundice, viral hepatitis, somebody met with a road traffic accident, and वहाँ पे 6 एंटीबायोटिक चल रहे हैं या पेन किलर चल रहे हैं, then if you stop the statins for some time, for a week or two, that call should be taken by the doctor. यदि आप बहुत हाई रिस्क हैं फॉर हार्ट डिजीज, तो वो स्टैटिन नहीं बंद किया जाएगा. बट यदि आप रिलेटिवली लो रिस्क हैं, then there is always a risk of increasing drug-drug interactions. Your doctor might say, let's stop these medicines for about 2 weeks. Let's get over with the viral hepatitis, the fever, the dengue, the chikungunya, and then we can start again. तो ये चीज जरूर देखें कि अपने डॉक्टर से बात करें, और खासकर जिन्होंने वो स्टैटिन लिखा था शुरू में, that person would have done a risk assessment. Ideally, you should have written it down on your notes. Yes. कई बार नहीं लिखा जाता, बट जिन्होंने शुरू किया था स्टैटिन या बीटा ब्लॉकर या कोई हार्ट फेलियर प्रिवेंट करने की दवाई, उनसे जरूर पूछें दवाई सडनली बंद करने से पहले. अब मल्टीपल डॉक्टर्स होते हैं. अब आई टेक एन एग्जांपल ऑफ अ पेशेंट हु केम टू मी 3-4 days ago. एल्डरली जेंटलमैन, डायबिटिक फुट हो गया, पहले ही चारकॉट फुट था एक साइड पे, दूसरी तरफ भी फुट हो गया, एंड ही वाज ऑन टॉर्सेमाइड 10 मिलीग्राम बीडी. वो झूमते हुए आए ओपीडी में, एंड हमें ये दिखा कि उनका सोडियम कम हो गया है क्योंकि वो खाना भी नहीं खा रहे, इन्फेक्शन थी. तो हमने उनका टॉर्सेमाइड का डोज हाफ कर दिया. ये भी कहा कि हम आपका सोडियम भी चेक करते रहेंगे रेगुलरली. तो बट हमने उनको एक्सप्लेन किया सो दैट व्हेन द डायबिटिक फुट इज टेकन केयर ऑफ, व्हेन ही गोज बैक टू हिज कार्डियोलॉजिस्ट, वो चंडीगढ़ में रहने वाले हैं, व्हेन ही गोज बैक ही विल बी एबल टू टेल हिज डॉक्टर कि इस तरह से मैं बीमार हुआ, इसलिए ये वाली दवाई आपकी कम की गई करनाल में, और अब उन्होंने हमें कहा है कि अब आप वापस चल जाएं डॉक्टर के पास, जो भी आपके ट्रीटिंग डॉक्टर हैं चंडीगढ़ में, एंड ही विल डिसाइड. नाउ दिस पर्टिकुलर पेशेंट इज डूइंग वेरी वेल ऑन 10 milligram torsemide. So as of now he is doing well, but in winter he may have to increase his dose again. So you have to explain to the patient, and यदि आप patient ये सुन रहे हैं, do remember to speak with your doctor or doctors about this. Suddenly change ना करें दवाई खुद. यदि चेंज करते हैं, देयर हैज टू बी अ रीजन, तो वो रीजन डॉक्यूमेंट होना चाहिए, एंड सारे डॉक्टरों को पता होना चाहिए. जैसे अब लो सोडियम की बात है, तो वी हैव मेड श्योर दैट आवर पेशेंट एंड हिज डॉटर, हिज सन इन लॉ, दे आर ऑल अवेयर ऑफ इट, सो दैट दे कैन टेल द कार्डियोलॉजिस्ट. एक लास्ट क्वेश्चन सर, अगर आप अलाउ करें, महेश चौहान जी पूछते हैं, जेम फाइब्रोजेल इज अवेलेबल इन इंडिया और हैव वी स्टॉप्ड यूजिंग इट? जेम फाइब्रोजेल We don't use it. We don't नॉट use it. अवेलेबल. Probably not available also. नॉट अवेलेबल. After statin, probably after statin, most of the drugs, they are not being used as of now, because we are very much clear
that what we need to treat is LDL. Now there are some novel medicines they are coming. For example, this we have discussed PCSK inhibitors and all these things. So in future we may see, or this for triglycerides or isocapental recently approved. So these kind of drugs may be available in recent futures. मिस्टर केके पूछते हैं कि बाहर से भी हमने कोलेस्ट्रॉल खाना बंद कर दिया, घी आपने बंद करवा दिया हमें, फिर आपने स्टैटिन दे दिया, उससे भी कोलेस्ट्रॉल लो हो गया, तो मेरा ब्रेन में अगर कोलेस्ट्रॉल खत्म हो जाए तो व्हाट विल हैपन टू माय ब्रेन? याददाश्त का क्या होगा? We have already discussed even patients who do not have LDL in the blood, dementia is not an issue. They do very well. So just be assured. But किसी भी for general public also, do not stop eating cholesterol. Cholesterol is essential part of body that is required for reproductive systems, for hairs, for skin. So there are so many processes, and most of the hormones, there are some endocrine glands which are for which the cholesterol is very vital component. So restrict it and change the quality. For example, you can have simple meal, sattvic bhojan, but do not go for pizza, burger, and junk food. They have a kind of fat which is not good for heart and blood vessels. So quality of cholesterol need to be taken care rather than the quantity of the quality, and go for intense exercise. आप जितना खा रहे हैं उतना आपको निकालना भी है. If you are sweating hard, if you are taking good cholesterols, if you are taking meditating and you are avoiding junk food, then it's okay. So Sattvic lifestyle is what Dr. Kamal Yes. promotes. Thank you, sir, for that. Sir, it's been great being with you. घंटा हो गया और पता ही नहीं चला. Thank you, sir. केके साहब केके भाई को बोलेंगे कि आपकी याददाश्त बिल्कुल ठीक रहेगी, बाकी भूलें या ना भूलें, केके में टॉक्स देखना ना भूलना, बिकॉज हर मंडे थर्सडे आपके ब्रेन के लिए खूब सारा फूड एंड फॉडर आता रहेगा फ्रॉम आवर एक्सपर्ट्स, एंड वी रिक्वेस्ट डॉक्टर कमल टू जॉइन अस अगेन इन द नियर फ्यूचर फॉर Thank you, another sir. topic on heart disease. We have Thank you so much, Faraz sir. with us backstage. Yeah, Faraz, could you please show a certificate for Dr. Kamal? Thank you, sir, so much. Thank you so much, sir. And like Dr. Kamal said, 29th September is World Heart Day. We look forward to having Dr. Kamal with us again on the 29th or on a nearby date to talk about Anytime, heart. sir. Yeah. Anytime, sir. Thank Monday you so and much, sir. Thursday. Thank you so much, sir. KK Metox continues every Monday and Thursday. हर सोमवार, हर जुमेरात हम आपके साथ होते हैं. And we keep on exploring newer facets of health and happiness. Thank you, all of you, for being part of the KK family, for working towards health and happiness. इसके साथ सबको नमस्ते, धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी एंड जय हिंद.